कभी नीतिश सर से इसी के बारे में बात करी है आपने? मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, रियली? कभी भी बात नहीं हुई। इनफैक्ट आई वांटेड टू मीट हिम बट आई कुड नेवर मीट हिम फॉर व्हाटएवर रीज़न, क्योंकि बचपन में मैंने भी उनको देखा है। आई थिंक रीरन्स में, महाभारत में मैंने उनको देखा है। उनको बहुत सराहा है उनके काम को। और उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। पीपल डू से दैट बट फॉर मी ही इज़ हिम। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सिर्फ 2 लोग हैं जिनका नाम श्री कृष्ण के साथ ऐसे जुड़ता है। बोथ ऑफ यू आर स्पेशल सोल्स। इतने सारे लोगों ने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, बट अब भी रील्स एल्गोरिदम्स पर आपका ही चेहरा उनका चेहरा आ जाता है टू रिप्रेजेंट कृष्णाज एनर्जी। वेरी हैवी ड्यूटी ब्लेसिंग। दैट्स ऑल हिम। मेरे को याद है कि जब भी कोई शॉट होता था, जब हम इसको फिल्म कर रहे थे, मैंने कई बार पहले भी ये बोला है एंड आई टोटली बिलीव इन दैट कि जो कराया, आई वॉज जस्ट अ मीडियम, अ चैनल, एंड इट वॉज ऑल विद हिज ग्रेस दैट इट हैपेंड। और हर एक शॉट से पहले मैं यही बोलता था हाथ जोड़ के, जो कछु कीना तू कीन्हा, मैं कछु कीना ना ही। वाह। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, और वो मैं आज भी वो लेके चलता हूँ। जब भी कोई अप्रिसिएशन कुछ भी मिलता है, it's all his, it's all for him, nothing for me. That is how I take it. I feel blessed, I feel blissful for the role and the opportunity that I got, but I know that it's people's love for him, and I respect that. जब वो डायलॉग डिलीवरी आप कर रहे होते थे तब, मोनोलॉग्स में स्पेशली, देयर वाज एन अदर एनर्जी स्पीकिंग थ्रू यू फॉर श्योर। जो एक अदा होती है एक्टर की, उससे पता चल I think जाता that was a zone of nothingness. है। ये पूछना चाह रहा It was because I had surrendered completely. हूँ। आप मेडिटेटिव स्टेट में थे Always. एक्टिंग के दौरान? Always that time. Yeah, because when I would say this, and I when meditation क्या है, मतलब for my understanding, जहाँ तक मुझे लगता है, it's a complete surrender is what meditation is. When you are surrendering yourself to the almighty, to the universe, or whatever name that you want to. I was in that zone all the time when I was doing it. हाउ वाज योर चाइल्डहुड? My childhood wasn't that great. It wasn't. But at the same time, like I told you, that I have not carried that baggage with me. I haven't. I've only learned from it. And I think the reason primarily is one of my teachers in my school. I still remember her name. Her name is Shakuntala ma'am. And she was also the principal that time. And she used to teach psychology. तो उन्होंने ना अपने एक सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में, एक चीज़ बताई थी, नेचर एंड नर्चर के बारे में। Lot of things that happens in your life is either nature through or the nurture, how you are progressing in life. you know so it is up to you what you want to hold on to. यानी कि जिंदगी में कुदरत की वजह से चीज़ें होती हैं, hmm या जो आपके आसपास की एनवायरनमेंट है। यस, उसकी वजह से होते हैं। और उससे आप, और उस सेम सिचुएशन में दो लोग सिमिलर सिचुएशन में बहुत डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं। You can choose, the choice is yours at that point of time, that what you want to hold on to. Luckily, because of my mother, and luckily because of my wonderful wife, and now my children, I think I've hold on to the right things and the good things in life. So I don't have any क्या बोलते हैं, स्कार्स? scars as such. और अगर बचपन में कभी कोई रहे भी होंगे ना, तो उसका मुझे कोई वो नहीं है, अभी कोई कोई पेन नहीं है। There's nothing. 20s में स्कार्स थे रिलेटेड टू चाइल्डहुड? 20s तक थे। I think by the time Mahabharat came, it was all off. Mahabharat became a switch for me in many ways, many, many ways. Financially, professionally, as person, lot of it changed after Mahabharat. In fact, I can say now, when you talk about why I can't imagine me having doubt or whatever, but जब मैं मुंबई आया था, I had come with just few $1,000. Parents were not supportive. Financially, I was just studying in the second year, so how would I have, many people who came along with me on that show had help from their houses, financial support. उनको घर मिले हुए थे, गाड़ी मिली हुई थी। I had nothing of that sort. आप रीमिक्स की बात कर रहे हो मैं ना? रीमिक्स की बात कर रहा हूँ। उस शो में भी आप अंडर प्रिविलेज कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इफ आई रिमेम्बर राइट।
Underconfident, but not Un- privileged. It was a Sikh character. It was a Sikh guy who Yeah. was not ready to accept his religion. Yeah. मुझे याद है. Yeah. Very but good screen presence even then. Yeah, really? Yeah, genuinely. मुझे तो कुछ Because of मतलब your height also, हाँ. it was an overpowering character. हाँ. But whatever, there was Theraf. Okay. But I would never think कि this guy playing the Sikh character is going to play Shri Krishna. वो कई बार मैं खुद भी सोचता हूँ कि सिद्धार्थ सर ने कैसे सोचा इतने मेरे को लगा शायद मेरे को एकता कपूर ने रिजेक्ट इसलिए किया होगा क्योंकि इतना लंबा कृष्ण कैसे दिखेगा. Why But- not? नहीं, why not is to them, not to me. मतलब ऐसा मुझे लगता था शायद रिजेक्ट इसलिए किया होगा because I have been rejected so many times because of my height. Not only for this role but many other roles. Yeah. क्योंकि टीवी में कई बार पेयरिंग में उनको लगता था कि लड़कियां इतनी लंबी नहीं मिलती तो पेयरिंग में लंबों को मतलब इतनी लंबी हाइट के साथ पेयरिंग नहीं हो पाएगी. सो आई बीन रिजेक्टेड many a times. But that has not shaken me in any way. Initially, earlier, I used to have those doubts, those insecurities that I was speaking about. कि यार मेरी height इतनी ज़्यादा क्यों है? और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मतलब लाइक अ फ्रेंडली नोट, कोई अगर बंदा थोड़ा डार्कर शेड में है तो अगर उसके लिए कुछ बोला जाए तो वो ऑफेंड हो सकता है और दूसरों को बुरा भी लगेगा. कोई अगर छोटी हाइट का है वो उसको कोई बोले तो वो ऑफेंड हो सकता है, उसको बुरा भी लगेगा. लेकिन अगर कोई बहुत लंबा है और उसको कोई कुछ बोले वो ऑफेंड भी नहीं हो सकता है. उसको राइट ही नहीं ऑफेंड होने का, उसको बस सुनते जाना है. यू नो. या